First up, let's get you this latest reaction coming in from Congress leader Imran Masood, who has now batted for Priyanka Gandhi Vadra as the Prime Minister, triggering questions if Congress is seeing a churn within. Remember, this is not the first time that statements have been made that allude to the fact that the Congress needs new leadership. In the past, the leadership of the Gandhis, all involved, has been questioned. But now, Imran Masood has pitched for Priyanka Gandhi Vadra as the Prime Minister in the future, giving an indication that some in the party at least feel that Priyanka Gandhi Vadra would be a better leader for the party than Rahul Gandhi. Let's listen it. प्रियंका जी ने सबसे पहले लास्ट टाइम जब बांग्लादेश के अंदर हो रहा था सबसे ज़्यादा बोलने का काम किया और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। प्रियंका गांधी जिस तरह का इलाज करेगी, इस चेहरे के ऊपर 2 आँखें हैं, ये इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं, ये 2 आँखें हैं, इनको अलग अलग मत देखो। वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। So different voices within the Congress party. Imran Masood is suggesting that Priyanka Gandhi Vadra would be a very strong leader. As a Prime Minister, she would be able to do what Indira Gandhi once did to Pakistan. He's obviously referring to the 1971 liberation war of Bangladesh. Of course, we are seeing things turn completely differently in Bangladesh. There is an entire movement wanting to discredit the liberation of Bangladesh from Pakistan. Keeping that aside, one member of the Congress party is certainly coming out in the open to say that Priyanka Gandhi Vadra has what it takes to take strong decisions. He meant it possibly also as a criticism of the current government that is not doing enough according to the Congress. But he's talking about how Priyanka Gandhi has been talking about atrocities against Hindus in Bangladesh for a very long time. She has raised this issue again, also given what is happening on ground. My colleague Pallavi Ghosh is also joining us with more on this. Pallavi, how do we read this? Just as a comment that possibly wanted to criticize the current government for not having enough, not having enough muscle to do something about what's happening in Bangladesh? Or is there a sense within the party that people prefer Priyanka over Rahul? See, there's no doubt that there are strong 2 power centers today in the Congress party. One, of course, is Rahul Gandhi. But then because he's the LOP, he certainly has that edge. But the equally other powerful and influential power center is that of Priyanka Gandhi Vadra. Whenever there have been troubled times to sort out the differences, whether it was Karnataka, whether it was Rajasthan or Chhattisgarh, she has always emerged as the troubleshooter. It's easier for the party leaders, they tell me, to connect with her, to get access to her. And even she makes it a point to come to Parliament early in the morning, bank at 9:15 a.m., attends the party meetings, whereas Rahul Gandhi, as we all know, is more not seen inside Parliament, missing in action. If the winter sessions stand out for a report card on the Gandhis, clearly Priyanka Gandhi Vadra has scored that edge with her speech on Operation Sindoor earlier, this time on Vande Mataram, and also the kind of, the interaction she had with Nitin Gadkari. Those pictures have gone viral. Then having a cup of tea with the Prime Minister, those pictures have also gone viral. Therefore, every time the Congress loses an election, there are many within the party, some were vocal, some not so vocal, who say that she is the one. She is savvy, she's a good communicator, she knows how to mix around with people. Some people have actually left the party, like Acharya Pramod Kishan, who's very close to Priyanka Gandhi Vadra, on the grounds that, this is a Congress which cannot run well if it is led by Rahul Gandhi. We recently saw the expelled Odisha Congress MLA also. In that letter to Sonia Gandhi, he also mentioned that it is Priyanka Gandhi who should take up the reins of the party. So that power center, that demand, interesting times, because I still think the coterie of Rahul Gandhi will insist that it is going to be all about Rahul Gandhi and not about Priyanka Gandhi Vadra.
I do want to understand from you, Pallavi, as far as within the family is concerned, when these voices come out, I mean, what's the equation within the family? You talked about that letter written to Sonia Gandhi as well by the Odisha leader mentioning Priyanka Gandhi Vadra. Is there going to be a decision that the family makes? Because I'm assuming that the family will have to make a decision first on this. Well, the family took a long time in ensuring that Priyanka Vadra comes into active politics. I mean, you know, it took Rahul Gandhi to step down and contest from Raebareli for Priyanka Gandhi Vadra being seen as the obvious choice. And I suspect she was chosen as a candidate also because they did not want to leave Wayanad empty without a Gandhi. So they had to replace one Gandhi with another, which was a political compulsion. But her entry into active politics, her say in the affairs of the Congress party was limited to her being General Secretary in charge of Eastern Uttar Pradesh. But beyond that, she is largely and sporadically, I would say, seen during the campaign, stepping in for Rahul Gandhi. But when it comes to calling the shots, dictating the line for the Congress, it usually comes in from Rahul Gandhi and not from Priyanka. I think that's the thing which has been made very clear by Sonia Gandhi, though on the face of it, everyone says that this is not so. Yes, a certain amount of sibling rivalry is there, but at the same time, I think Sonia Gandhi has made it very clear that her heir apparent is RG and not Priyanka Gandhi Vadra. के लिए उनको बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी फैक्शन की ओर से एक फतवा जारी किया गया। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता कि राहुल गांधी के अंदर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये राहुल गांधी के लिए अब केवल जनता की ओर से नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब तो उनके खुद के अलाय पार्टनर और परिवार के सदस्य और पार्टी के सदस्य भी एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर रहे हैं। और इसीलिए जब राहुल गांधी जनता से हारे, संगत से हारे और अब जनपद से भी शायद उनको समर्थन प्राप्त नहीं है, तो वो फिर से एक बार अपना गुस्सा और बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा है वो निकालने के लिए विदेश चले गए और भारत के खिलाफ वो गुस्से को निकालने लगे। और फिर से एक बार राहुल गांधी ने मोदी विरोध में या जनता के विरोध में या जनता के मैंडेट के विरोध में भारत विरोध शुरू कर दिया। अभी हमने देखा है कि आईएनसी तो एमएमसी बन ही चुकी थी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, माओवादी मुस्लिम लीग, पर माओवादी मुस्लिम लीग के साथ साथ अब आईएनसी का नया नाम बन चुका है एएनसी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है। और ये राहुल बाबा ये एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, ये राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, एलओपी मतलब लीडर ऑफ पर्यटन और एलओपी मतलब लीडर ऑफ पलायन बन चुके हैं। और आईएनसी का केवल एक ही काम बन चुका है, बीबीबी, भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर राहुल गांधी के नेतृत्व में पी फॉर प्रोपेगेंडा फैलाना, दुष्प्रचार करना भारत के खिलाफ, पी फॉर पर्यटन पर चले जाना, पार्लियामेंट छोड़कर बंक करके विदेश चले जाना सोरोस के एजेंट से मिलने के लिए, और पी फॉर पलायन कर देना, जब कोई प्रमाण नहीं हो बातों का तो हिट एंड रन करके एक एलिगेशन लगाकर दूसरा एलिगेशन लगाकर तीसरा एलिगेशन लगाकर पलायन कर देना, पर जब पार्लियामेंट से लेकर बाकी जगहों पर जवाब दिया जाता है तो भाग जाना। आज राहुल गांधी ने जो भी बातें कही है बर्लिन में, उसका एक के बाद एक फैक्ट चेक तो मैं करूंगा ही, पर एक बार आपको राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड बता देना चाहता हूं। ये राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ वर्षों में क्या किया है। राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, भारत के खिलाफ सुपारी लेते हैं, सोरोस की ये सुपारी लेकर सोरोस की जो भी स्क्रिप्ट होती है भारत के खिलाफ उसको उगलने का काम राहुल गांधी करते हैं। और ये सोरोस के इशारे पर करते हैं, कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पर करते हैं। आपको याद होगा कि एक बार राहुल गांधी विदेश गए और कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज डेड, और इसीलिए भारत में यूएस और यूके का इंटरवेंशन होना चाहिए। सीधे सीधे उन्होंने मांग की कि भारत की सॉवरेनिटी, सार्वभौमता के खिलाफ ये विदेशी ताकतें इंटरवीन करें।
राहुल गांधी का एक और स्टेटमेंट जो उन्होंने अपने कार्यालय में दिया था कि हमारी लड़ाई बीजेपी या मोदी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। फिर आपको याद होगा कि जब भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड कर रही थी तो राहुल गांधी ने बोला भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी इज डेड। और ये वही राहुल गांधी है जो कभी सोरोस के एक चेले सलील शेट्टी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं, या कभी सोरोस के फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई कॉर्नेलिया वुल के साथ दिखाई देते हैं, या कभी सोरोस की फंडेड ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स लेकर भारत की संस्थाओं के खिलाफ दुष्प्रचार करके पार्लियामेंट को बंधक बनाते हैं, या कभी तो वो भारत के खिलाफ बोलने वाली इल्हान ओमर और कुछ बांग्लादेशी पत्रकार जो केवल और केवल भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, जम्मू कश्मीर के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, उनसे गुपचुप मीटिंग करते हैं। राहुल गांधी का जो अभी लेटेस्ट एपिसोड आया है भारत बैशिंग का बर्लिन से, उसके विषय में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं और एक के बाद एक फैक्ट चेक करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने बोला सबसे पहले इस पूरे 1 घंटे 8 मिनट के उनके जो स्पीच में, जो पार्लियामेंट बंक करके वो विदेश गए थे देने के लिए, कि ईवीएम्स जो है वो फॉल्टी होती है, ईवीएम्स को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने से तो ये लोग वोट चोरी और वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठा रहे थे। तो कई बार पूछा भी गया कि भाई ईवीएम का राग अलापना बंद कर दिया, आप ईवीएम से संतुष्ट हो? और कोई भी लॉजिकल पर्सन बोलेगा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होगी या ईवीएम ही मैनिपुलेट किया जा रहा था तो भाई वोटर लिस्ट को कौन मैनिपुलेट करेगा? आपका तो यह कहना था हर बटन दबाओ तो मोदी को वोट जाता है, बीजेपी को वोट जाता है। तो अब वो फिर से ईवीएम के ऊपर आ चुके हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, अभी ये केरल में जो लोकल पोल्स हुए जिसपे आपने ट्वीट भी किया है और आपने तो खुशी जताई कि कैसे कांग्रेस पार्टी और आपकी अलायंस जीती है वहां पर, वो तो ईवीएम से हुए। और जहां तक मेरी जानकारी है ईवीएम विदाउट वीवीपैट ये हुए, तो वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। झारखंड में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, जम्मू कश्मीर में, यहां सभी जगहों पर तो ईवीएम ठीक काम कर रहा था। लोकसभा के चुनाव में ईवीएम ठीक काम कर रहा था। हां, पर जब आप चुनाव हार जाते हैं और जब बिहार में आपके पास कोई जवाब नहीं बचता देने के लिए, तो वहां पर ईवीएम का बहाना फिर से शुरू कर दिया आपने। 41 वर्डिक्ट्स आए हैं ईवीएम को लेकर अलग अलग कोर्ट्स के। सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्डिक्ट है कि केवल जब आप हारते हैं तो ईवीएम को दोष देना यह बिल्कुल गलत है। और चलिए अदालत पर भरोसा ना हो तो आपके साथी संगत वाले उमर अब्दुल्ला जी पर तो भरोसा होगा। उमर अब्दुल्ला जी भी कहते हैं कि मैं ईवीएम को दोष नहीं दे सकता। सुप्रिया सुले का भी पार्लियामेंट में बयान है कि इसी ईवीएम से तो मैं चुनाव जीती हूं कई बार, तो मैं कैसे ईवीएम को ब्लेम कर दूं? तो राहुल जी, पहला सवाल, आपने विदेश में जाकर ईवीएम्स को फॉल्टी बोल दिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उमर अब्दुल्ला जी और आपके साथी एनसीपी शरद पवार ये सब झूठे हैं क्या? दूसरा, राहुल गांधी बोलते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस फेयर नहीं था। ये इलेक्टोरल प्रोसेस फेयर नहीं था कि बात कौन कर रहा है? ये वही राहुल गांधी है ना जिनके परिवार में खानदानी वोट चोरी का इतिहास लिखा हुआ है। 75 में, 1975 में इंदिरा गांधी कन्विक्ट हुई इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए। 1987 के जम्मू कश्मीर के चुनाव रिग किए गए, यह शशि थरूर का ऑन रिकॉर्ड बयान है। 1990s में ईवीएम के आने से पहले बूथ चोरी की जाती थी। जी परमेश्वर से लेकर संदीप दीक्षित का अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यह ऑफिशियल बयान है। और कांग्रेस बात कर रही है वोट चोरी की। अभी कांग्रेस पार्टी का एक नेता नंजेगौड़ा कर्नाटका में कन्विक्ट हुआ है वोट चोरी के लिए। कन्विक्ट हुआ है, उसका इलेक्शन रद्द हुआ है। यह कांग्रेस पार्टी बोल रही है। और फिर से मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आप तो वोट चोरी कर रहे हैं, पर आप क्यों अपने पार्टी के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते? तारिक अनवर बोलते हैं ये वोट चोरी नहीं, ये सीट चोरी है।
कुमारी शैलजा बोलती है कि वोट चोरी की वजह से नहीं, अंदरूनी कमजोरी की वजह से आ रहे। और स्वयं एनसी, इनके साथी, उनके सांसद मोहम्मद रमजान, अभी उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दिया था जब ये एसआईआर और इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा हुई कि जम्मू कश्मीर में मोस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, जिसकी बदौलत हमारी सरकार कांग्रेस के साथ बनी। तो अब बताइए, इलेक्शन प्रोसेस उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी को तो फ्री एंड फेयर लगा, झारखंड में मुक्ति मोर्चा को, जेएम को तो फ्री एंड फेयर लगा। जहां आप हारते हैं वहां पर इलेक्शन प्रोसेस अनफेयर है, और जहां आप जीतते हैं वहां पर आप तो केरला से लेकर बाकी चुनावों में अपनी जीत बताते हैं। तो ये वोट चोरी नहीं, ये ट्रूथ चोरी का मामला है, और ये हिपोक्रेसी करके चोरी पे सीनाजोरी का मामला है। एक और ट्रबलसम स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया, मैं एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं आपको, और मैं चाहता हूं कि मीडिया के साथी इन कोट्स को उठाकर राहुल गांधी जी से एक बार कम से कम काउंटर सवाल भी पूछे। राहुल गांधी ने अभी इस बयान में, इस 1 hour 8 minute के संबोधन में बोला, और आप चेक कर सकते हैं काउंटर्स में, 1 woman has voted 200 times in the हरियाणा इलेक्शन। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर बोला है कि एक महिला ने 200 बार अपना वोट कास्ट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा है कि नाम 200 बार था, उन्होंने कहा कि शी हैज वोटेड 200 टाइम्स। अब मैं इस मंच से राहुल गांधी को चुनौती देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने कहा था शकुन रानी नाम की एक महिला ने 2 बार वोट किया था। आप ही के मीडिया के साथियों ने जाकर शकुन रानी जी का बयान लिया था और बताया था कि शकुन रानी जी ने 1 बार ही वोट किया था, 2 बार नहीं किया था। यहां पर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि एक महिला है, कोई एक महिला है जिसने 200 बार वोट किया। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी को कि 200 बार कहां, किस बूथ पर उन्होंने वोट किया और वो कौन महिला थी, उसके डिटेल्स सामने दिए जाए। क्योंकि उन्होंने कहा है कैटेगोरिकली शी हैज वोटेड 200 टाइम्स। उनका नाम कई बार आया ये नहीं बोल रहे, वोट कर दिया है। और मैं तो लॉजिकली एक सवाल पूछना चाहता हूं, वोटिंग कितने बजे से कितने बजे तक की होती है? सुबह 7 से लेकर 6 बजे तक की, मतलब 11 घंटे। तो 11 घंटे में अगर 200 वोट डालने हैं तो 18 वोट हर घंटे, मतलब हर 3 मिनट में 1 वोट। क्या यह मुमकिन है क्या कि हर 3 मिनट में कोई 1 वोट डाल दे? हमारी जैसी व्यवस्थाएं हैं कि आप जाते हो, एंटर करते हो, अपना वोट चेक करते हो, दिखाते हो अधिकारी को, फिर ईवीएम के पास जाते हो, वोट करते हो और बाहर निकलते हो। उतने में काफी समय है क्या 3 मिनट में 1 वोट कास्ट करने का? लीव अलोन की आपकी उंगली पर एक इंडेलिबल इंक का निशान भी आता है। और लीव अलोन अगर ये कह रहे कि अलग अलग बूथ पे हुआ है तो कैसे हो सकता है? एक बूथ से दूसरे बूथ जाने में भी तो समय लगेगा। मतलब ना लॉजिक है ना फैक्ट्स है, केवल आकर भारत की बदनामी करनी है। तो इस प्रकार के आउटलैंडिश और मैं कहूंगा कि बिल्कुल तर्कहीन बातें करना, यह राहुल गांधी की आदत बन चुकी है, फितरत बन चुकी है और शरारत बन चुकी है। राहुल गांधी बोलते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के पोल बड़े अनफेयर थे। राहुल गांधी जी, महाराष्ट्र के चुनावों पर जो आपके आरोप थे वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, क्या निकला उसमें से? या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? तो कह सकते हैं आप। राहुल गांधी जी ने हरियाणा के चुनाव की बात की। राहुल गांधी जी, कुमारी शैलजा से पूछ लीजिए, आपकी बड़ी वरिष्ठ नेता है, दलित नेता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को क्यों दोष देते हो, हम तो हुड्डा जी की वजह से हारे। और राहुल गांधी जी, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अभी बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आए ना, आज हम लोग 23 दिसंबर पर है। आपका आरोप है कि बिहार में भी बड़े स्केल पर धांधली हो गई। चलिए, एसआईआर में तो आप एक कंप्लेंट, एक शिकायत वोट डिलीशन को लेकर नहीं दे पाए, पर वोट की धांधली हुई, चुनाव गलत तरीके से हरवाया गया, इसको लेकर कितनी पेटिशंस कांग्रेस के नेताओं ने डाली है, या आरजेडी के नेताओं ने डाली है, या समूचे विपक्ष ने डाली है? एक पेटिशन अगर किसी हाईकोर्ट में हो तो बता दीजिए, इलेक्शन पेटिशन। पेटिशन डालेंगे नहीं, सीसीटीवी मांगेंगे नहीं, और फिर उसके बाद कहेंगे कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। यह है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जी ने केवल भारत की इलेक्टोरल प्रोसेस,
भारत की इंस्टीट्यूशंस, भारत के इंस्टीट्यूशनल कैप्चर पर या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो हमारे खिलाफ काम कर रही है, इतना नहीं बोला है। राहुल गांधी ने तो यह भी कह दिया कि भारत में प्रोडक्शन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और चाइना जो है वो बड़े अच्छे से प्रोड्यूस कर पाता है और भारत ने अपना पूरा प्रोडक्शन चाइना को दे दिया, यह भी राहुल गांधी ने कहा। तो आइए इसका भी फैक्ट चेक कर लेते हैं। वैसे एक बात समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी को चाइना से इतना प्रेम क्यों है। ये चाइना का लेकर चंदा आरजीएफ में चाइना का बढ़ाना है धंधा और प्रोपेगेंडा, ये कुछ ऐसा मामला है क्या? या वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया है उसकी वजह से इनको केवल और केवल चाइना में अच्छाई नजर आती है और भारत की बदनामी करनी है? मतलब भारत का करो अपमान, चाइना के गांव गुणगान। अभी कुछ महीने पहले वो गए थे कोलंबिया, 1 महीने 2 महीने पहले, तब उन्होंने कहा था कि भाई भारत तो लीड नहीं कर सकता दुनिया को, चाइना लीड कर सकता है। डोकलाम के समय पर हम देखते हैं कि चाइनीज एम्बेसडर के साथ चोरी चोरी छुपके छुपके मिलते हैं जब भारत की सेना आंख से आंख मिलाकर चीनी सेना को जवाब दे रही होती है। चाइना से चंदा लेते हैं और भारत के खिलाफ जो भी नीतियां हैं उसको अपनाने का काम करते हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हो